welcome back to my YouTube channel. Today I have decided to entertain you once again with a new topic, and today I will discuss cat. आज मैं बात करूँगा बिल्ली की। अब आप लोग ये सोचेंगे कि ये जो है अभी कुछ दिन पहले तो कुत्ते की बात की और आज बात कर रहे हैं बिल्ली की। तो these are catchy words which excites us, and cat and dog, these are very interesting words, and when we get some idioms on these words, then we are certainly on the crest of a wave, because we have only heard about them and with their activity of cat and dog. So today I have decided to write some idioms, and these idioms are related with the word cat. तो आज जो है कुछ यहाँ पर मैंने शब्द लिखे हैं, कुछ वाक्य लिखे हैं यहाँ पर जो है। इन वाक्यों को जो है जब अपन अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, when we translate these sentences in English, then we will use the word cat in every sentence. So जब यहाँ पर बात हो रही है interesting idioms using the word cat, so here I have written 13 sentences in Hindi, and I will explain them in English, and I will write their English meanings on the opposite sides, so that you may understand that the word cat is used differently in different sentences. तो अलग अलग वाक्यों में जो है यहाँ पर जो cat शब्द है उसका अलग अलग तरीके से प्रयोग यहाँ पर हमने किया है। तो हम इसके बारे में आज ये जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अति उत्सुकता हानिकारक होती है। सो द इंग्लिश ट्रांसलेशन विल बी क्यूरियोसिटी killed the cat. Curiosity killed the cat. अति उत्सुकता हानिकारक होती है। If you are curious, then curiosity is right. But if you are curious unnecessarily, then your curiosity will certainly cause you harm. कि अगर आपकी जो है जिज्ञासा जो बेवजह है और without any reason, if you are curious in something, then you will have to pay a heavy price for your unnecessary curiosity. So you should be curious in your life, but don't show curiosity unnecessarily, because that won't help you. Next is अनजाने में कोई राज खोलना. So in that way I have used the word cat in first sentence. Next is अनजाने में कोई राज खोलना. So the translation will be to put the cat out of the bag. तो अब ये हो गया अनजाने में कोई राज खोलना. तो if we inadvertently reveal a secret before anyone, before someone, and after revealing that secret, if we start repenting that why we indulged in revealing that secret before him, then it becomes very painful situation for us. So अनजाने में कोई राज खोलना, to put the cat out of the bag. I did not want to tell my friends the truth regarding the money I had brought to them, but I put the cat out of the bag, saying that I had stolen that money. कि मैं अपने मित्रों से ये कहना नहीं चाहता था कि मैं ये पैसे कहाँ से लाया, लेकिन अनजाने में मेरे मुंह से निकल गया कि ये पैसे मैंने चोरी किए हैं. सो आई हैड इनएडवर्टेंटली पुट द कैट आउट ऑफ द बैग, सेइंग आई हैड स्टोलन दैट मनी. सो इन दैट वे, अब इस प्रकार जो है इसका ये प्रयोग हो गया, टू पुट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब कि अनजाने में कोई राज खोलना. नेक्स्ट इज रंग में भंग डालना. नेक्स्ट इज रंग में भंग डालना. अब मतलब इसका यह है कि इन ए प्लेजेंट सिचुएशन डोंट ट्राई टू डिसरप्ट दैट सिचुएशन, डोंट ट्राई टू डिस्प्लीज द मर्थ. अगर आप जो है खुशी को का माहौल में जो है
कोई जो गुस्से वाली बात करके माहौल को जो है बिगाड़ना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू डिस्ट्रॉय द पीस ऑफ ए प्लेस एंड इफ यू स्टार्ट बिहेविंग मैडली देन इट बिकम्स वेरी रंग में भंग। क्या आपने जो है क्या किया है, रंग में भंग डाल दिया। तो इसका क्या होगा, टू पुट द कैट अमंग द pigeons. pigeons मीन्स कबूतर। क्या कबूतरों के बीच में आपने जो है एक बिल्ली को रख दिया। तो pigeons here stands for peace and quiet and freedom, and if you put a cat among the pigeons then the pigeons lose their calm and they lose their freedom एंड दे लूज देयर पीस। किस प्रकार जो है कबूतरों के बीच में अगर आप जो है बिल्ली को बैठा देंगे तो वो कबूतर जो है बिल्कुल ही अस्त व्यस्त हो जाएंगे। तो इसलिए जो है डोंट ट्राई टू पुट द कैट अमंग द पिजन्स। सो द सेंटेंस ऑफ फॉर दिस इडियम विल बी इन दैट वे दैट ऑल द स्टूडेंट्स वर सिटिंग पीसफुली इन द क्लास and they were studying peacefully in the class, and suddenly a notorious student displeased the mirth by putting out a lizard in the class, and he threw a lizard in the class, कि उसने जो एक छिपकली को क्लास में ऐसे फेंक दिया. So in that way he put the kite among the pigeons. So इस प्रकार उसने जो है जो शांतिपूर्वक जो बच्चे पढ़ रहे थे उनके रंग में भंग डाल दिया. तो इस प्रकार और राम राज्य स्थापित करना. तो राम राज्य की परिकल्पना जो है महात्मा गांधी ने भी की थी. इवन महात्मा गांधी हैड ए विजन फॉर यूटोपिया. पहले तो इसका अर्थ देखो, राम राज्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूटोपिया. और रावण राज्य को इंग्लिश में कहते हैं डेस्टोपिया. और वी certainly want to get utopia and we want to get rid of dystopia. कि डेस्टोपिया जो है उससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं और वी वांट टू हेड टुवर्ड्स यूटोपिया, हम राम राज्य की तरफ बढ़ना चाहते हैं. एंड वी कैन अचीव दैट सिचुएशन if we do not indulge in any kind of misadventure like corruption and theft and immorality. These evils do hinder us from getting that perfect situation. So in that way utopia and dystopia. So राम राज्य स्थापित करना. So English translation will be even a cat may look at a king. कि एक बिल्ली भी जो है राजा के सामने देख सके. मतलब कहने का अर्थ है कि कोई साधारण सा व्यक्ति भी अपनी बात कहने में कामयाब हो. ही शुड हैव ए फ्रीडम, ही शुड हैव लिबर्टी टू स्पीक वट एवर ही वॉन्ट टू से बिफोर एनीवन. ही शुड नॉट बी, his speech should not be abandoned from his free, he should give free vent to his stored up spite. So he must be given every chance to live in liberty, equality and fraternity with each other. There should be no discrimination among mankind on ground of race, caste, creed, sect and religion. कि धर्म, जाति, नस्ल, पंथ के आधार पर कोई जो है भेदभाव जो है नहीं होना चाहिए. सो महात्मा गांधी ऑल्सो वांटेड टू कंस्ट्रक्ट ए सोसाइटी वेयर इवन ए कैट माइट लुक एट ए किंग. के जो है एक ऐसे राज्य की स्थापना करना जहाँ पर ये बिल्ली भी राजा की तरफ देख सके. तो इसका मतलब ये है कि हमको जो है ऐसे एक शासन की व्यवस्था करनी है जहाँ पर समानता हो, एक रूपता हो, अधिकार हो और स्वतंत्रता हो. इस प्रकार इवन ए कैट में लुक एट ए किंग, राम राज्य स्थापित करना. सो कैट वर्ड इज कमिंग रिपीटेडली इन एवरी सेंटेंसेज. पोल में ढोल बजना. व्हेन द कैट इज अवे
द माइस विल प्ले, व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले। पोल में ढोल बजना। जब कोई जो है, व्हेन वी हैव गॉट अनवांटेड फ्रीडम देन वी सर्टेनली ट्राई टू टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ दैट सिचुएशन। क्या हमको अगर जो है थोड़ी सी भी छूट मिल जाती है किसी काम में तो हम उसका जो है बहुत ज़्यादा फायदा उठाने की कोशिश करने लगते हैं। सो इन दैट वे पोल में ढोल बजना। व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले, कि जब बिल्ली नज़दीक नहीं है तो चूहे जो है खेलने लगते हैं, मतलब कि पोल में ढोल बजना। नेक्स्ट इज अत्यधिक प्रतिक्रिया देना, लाइक ए कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। डोंट बिहेव लाइक ए कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, मतलब कि यू व्हेन यू हैव नॉट गॉट much effect on you, then why are you pretending to show that you have got hurt? If a person falls on the road and if he starts behaving that he has come down with a serious injury, then it is very foolish on his part to speak in that way, whereas he has not got मच इंजरी। कि अगर उसको ज़्यादा चोट नहीं लगी है और वो ऐसा बिहेव करने लगे कि मुझे तो बहुत ज़्यादा चोट लग गई है और वो बहुत ही ज़्यादा जो है सावचेत हो जाता है, तो वो जो है सावचेती कोई उसके मतलब नहीं है। उसको जो है वी शुड नॉट इंडल्ज इन शोइंग दिस काइंड ऑफ रिएक्शन विच इज़ नॉट नेसेसरी। सो अत्यधिक प्रतिक्रिया देना, लाइक ए कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। सो यू हैव नॉट कम डाउन विद ए सीरियस इंजरी, then why are you behaving like a cat on hot bricks? So in that way देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। Let's see which way the cat jumps. Let's see which way the cat jumps. देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। I have many plans to do in my winter vacations, but let's see which way the cat jumps। मतलब कि जो है अब उस समय मालूम पड़ेगा कि हमारी परिस्थिति कैसी बनती है। At that time we will be able to know what kind of situation we face। So देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। Let's see which way the cat jumps। किसी की नकल करना, to be a copycat, copycat। सो डोंट ट्राई टू बी ए कॉपी कैट, किसी की नकल मत करो। टू बी ए कॉपी कैट, सर्वश्रेष्ठ वस्तु का स्वामित्व रखना, कैट्स whiskers, cat's whiskers। now cat's whiskers means मूछें, बिल्ली की मूछें। तो a cat, the whiskers of a cat are regarded the best thing in a cat। क्या किसी की बिल्ली की जो है मूछें जो है वो उसकी सबसे जो है महत्वपूर्ण और जो है सबसे मूल्यवान चीज मानी जाती है। तो इस प्रकार के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का स्वामित्व रखना। बाई व्हेन आई बॉट अ न्यू कार दैट वाज ए कैट्स विस्कर्स फॉर मी। जब मैंने नई कार खरीदी तो वो मेरे लिए बिल्ली की मूछों की तरह थी। तो इस प्रकार ये हो गया सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का वस्तु का स्वामित्व रखना, कैट्स विस्कर्स। नेक्स्ट इज बिल्ली के गले में घंटी बांधना, बेल द कैट। नाउ अब बेल द कैट के बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। तो मतलब क्या है कि इसमें जो है कि एक बार चूहों की मीटिंग हुई कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, और सब ने जो है एक चूहे को जो है आगे किया और जो है बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए। इस प्रकार जो है कहानी के हिसाब से कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, मतलब सम स्टूडेंट्स वांटेड टू complain against a notorious student, but no one dared to speak that matter, to raise that matter to the principal. So they did not want to. Now the situation was of that kind that who will bail the cat, कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, कि उसकी शिकायत कौन करेगा, क्योंकि उसके लिए हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रकार
बिल्ली के गले में घंटी बांधना, बिना मतलब की व्यस्तता दिखाना, टू रन अराउंड लाइक ए स्कॉल्डेड कैट, टू रन अराउंड लाइक ए स्कॉल्डेड कैट, इट मीन्स विदाउट वर्क बिजी. If a person starts pretending that he is too busy to do other work and he starts loitering around here and there, then it means he does not want to do the work really, he just want to pass his time. So in that way, to run around like a scolded cat. बहुत ही मजाकिया परिस्थिति. Enough to make a cat laugh. So, my friend walking on the road fell on a skin of banana skin and that was enough to make a cat laugh. तो इनफ टू मेक ए कैट लाफ मतलब कि बहुत ही मजाकिया परिस्थिति, कि एक ऐसी परिस्थिति के उसमें जो है ऐसी कि किसी को भी हंसी आ जाए. इसका मतलब ये है कि किसी को भी हंसी आ जाए. सो व्हेन माय फ्रेंड फेल ऑन द ग्राउंड ड्यू टू बनाना स्किन दैट वाज इनफ टू मेक ए कैट लाफ. और सांप सूंघना, कैट गेट्स ऑन द टंग. When the police came and asked the criminal, when the police tried to extort the truth from the criminal and the criminal behaved as if he had got a cat on his tongue, कि उसको जो है क्रिमिनल का ऐसा हो गया, उसके सांप सूंघ गया, कि जब उसको पुलिस ने पूछा जो है सच उगलवाने की कोशिश की, when the police tried to extort the truth, then the criminal started behaving as if he had got a cat on his tongue. So in that way, I tried to explain these idioms in Hindi and the Hindi idioms in English. So these idioms are very useful for you, I think, and you should take a leaf out of your book by by cramming these idioms in your life. क्या आपको जो है इन idioms को, इसका जो है मुख्य उद्देश्य ये है इन idioms को बताने का कि आपको जो है रुचि जागृत हो. It may excite interest in you. That is my exclusive devotion, that you should excite interest in you regarding these idioms, and I am sure idiomatic expression can cast far more greater effect than that of any ordinary expression. So keep learning new idioms and use them in your daily life or in your written English or your spoken English, so that you may get perfection and your English may become absolutely impeccable. Good day.